हाय, मैं हूँ रूना आशीष। आप देख रहे हैं वेब दुनिया और मैं अभी खड़ी हुई हूँ हमारे देश की एक फ़ख्र कर देने वाली बात को आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और ये है आईएनएस सूरत, भारतीय नौसेना पोत सूरत, जो बस देश की सेवा करने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। जब तक आप ये न्यूज़ देख रहे होंगे, हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब यहाँ पर आए हों और इसका लोकार्पण भी कर चुके हों, उनको कमीशन भी कर चुके हों, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ थोड़ा सा पहले हमको जो मीडिया को बुलाया गया था इसके पूरे कवरेज के हिसाब से, तो ये एक्सक्लूसिव कवरेज वेब दुनिया के लिए मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। और इसके बाद मैं आपको जो भी बताने वाली हूँ वो इस युद्धपोत से जुड़ी हुई बातें हैं। इसे डिस्ट्रॉयर कहा जाता है और ये जो है ये 15 ब्रावो का ये लास्ट पोत बनाया गया है और ये हमारे देश का पहला AI इनेबल्ड पोत है। आइए आपको इनके नज़ारे भी दिखाती हूँ। यहाँ पर जो तकनीकी लोग इस पोत को बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं उनसे भी बात कराने की कोशिश करूँगी। चलिए आपको दिखाऊँ। आवाज आ रहा है, आवाज सांगवान साहब हिंदी आपको पूछना क्या मैम, मेरा नाम है कमांडर विवेक कृष्णन और मैं इस शिप का इलेक्ट्रिकल ऑफिसर हूँ। माय डेसिग्नेशन इज इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। ओके, आज जब पूरा बन गया है आपका ये युद्धपोत तैयार हो गया है, बस अब प्रधानमंत्री साहब जब भी आएंगे उनके हाथों आपको कमीशन होना बाकी है। पूरी मेहनत याद आती है? बिल्कुल। जो हमारा सफ़र रहा है इस डे तक, ये इट कम्स इन अ फ्लैश टू माय माइंड एंड इट हैज़ बीन एन एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग टास्क एंड इट इज़ द ट्रू mark of the culmination of all this is the presence of the Honorable Prime Minister for this grand event which India is witnessing for the first time. टेक्निकली जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, वो भी युद्धपोत जैसी चीज़ बनाते हैं, तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? या आम फॉर द पीपल हु वुड नॉट पॉसिबली अंडरस्टैंड योर टेक्निकल लैंग्वेज, इफ यू कैन सिंप्लीफाई फॉर देम। मैम, पहला है नेवी इज बेस्ड ऑन एनी शिप दैट इज being built in navy is built on the principle of to float, to move and to fight, and that truly defines what is kept in mind while a ship is constructed. First ship should be able to float and be stable. Next, the engines should kick in and give its range and speed, and finally a ship is meant to what makes a ship a warship is weapons and ordnance on target. So these are the key points that are kept in mind during the entire construction of this and the construction of a ship, and it culminates with test firings which will be undertaken. I am Commander Karthik Bhardwaj. I am the engineer officer on board. I look after the main propulsion, power generation, auxiliaries, fuel, fresh water for strength of 300 people on board is all under my charge. So that is what I discharge on board. So fresh water, I didn't understand. So we generate fresh water from a process called reverse osmosis, and throughout the sorties of, let's say, 2 to 3 months, which is the endurance of the ship, we keep generating water, consuming it, and that is in my charge as of now. Yeah. I get lots of inquiries from very small kids who only knows one thing, that if there is something which is very heavy, it will go down into the Yes. water. But ship is something which is a big, huge thing Yes. that is built by metal. Yes. Please explain for those kids who would not understand the reality. So there is something called Archimedes principle. Probably when the kids grow up, they will understand. But in basic layman terms, the size does not matter. It is the shape which matters. So when you look at the shape of the ship, it is a fish-like shape, which means that a fish can float, go down, and float up,
and somewhere it can float halfway through also. So this any design which is made, this ship has been designed by Warship Design Bureau of Indian Navy, wherein there is a certain depth which is given, which stays underwater. So we have certain compartments which are underwater and the remaining remain above water. Thank you. Where do we get to see this? सिस्टम दी बराक 8 सैम सिस्टम SRGM गन और AK-630 जो वेपन्स हैं, ये सबसे एडवांस तकनीक से बना हुआ है और नेवी के सबसे स्टैंडर्डाइज मिसाइल सिस्टम्स में से एक है, प्रूवन मिसाइल सिस्टम्स जिनकी ट्रैक रिकॉर्ड हैज़ बीन अनब्लेमिश्ड। इसके चलते हम अपनी टीम के साथ अच्छे से नेटवर्क कर पाएंगे और हमारे कैडर के साथ हाँ, इंग्लिश की ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ब्रह्मोस है। ये भारत और रशिया के कोलैबोरेशन में बनी हुई मिसाइल है। और ये जो नीचे आपको मैं एक गुंबज और उसके आगे एक अलग से तोपनुमा स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, ये भी एक मारक क्षमता रखने वाले मिसाइल ही है और ये BHEL हरिद्वार द्वारा बनाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर सब भारत में बनाई गई हैं और इंडिजिनस जिसे कहा जाता है ये वो है। और यहाँ पर रहने वाले मैं जितने भी लोगों से बात कर रही हूँ, मुझे यहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर फ़ख्र महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये है सरफेस टू एयर मिसाइल, 16 है ये, 16 यहाँ पर हैं। और ये जो आपको राउंड शेप में दिखाई दे रहा है, ये पनडुब्बी के लिए मिसाइल रखी गई है। अब आपको दिखाती हूँ एक बेलनाकार जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें नोवा और टर्मा लिखा हुआ है, ये भी एक रडार है जो टाटा के द्वारा बनाई गई है। अब दिखाती हूँ आपको ये गोल्ड रडार। ऐसी ही एक रडार पीछे की तरफ भी होती है और वो भी उतनी ही पावरफुल होती है। बेसिकली इनका काम यही रहता है कि आसपास अगर कहीं कोई दुश्मन है तो उसे ट्रैक डाउन किया जा सके।